Good afternoon, students. I hope you are all fine and you are enjoying the good days of your life. Today we are discussing the topic of visual communication. Remember one thing, under this topic we have to cover up the following things. Number 1, what is visual communication? Number 2, what are the different types of visuals? Number 3, what is visual aids media? Number 4, what are the types of visual aids media? And the learning objective of this discussion is to know how effectively we can use visual media, visual aids and the visual aids media to make our communication, to make our presentation successful. And already we have discussed different types of communication, in which we have talked about written communication, oral communication, that are in the form of written and the spoken words, and the third was the non-verbal communication, that was in the form of posture, gestures and time, space and like that. And there is another way to communicate, that is known as visual communication. And in this visual communication, mostly we are communicating in the form of charts, in the form of graphs, in the form of diagrams, in the form of pictures, in the form of maps, in the form of different models, photographs, drawings, etc. So now I'm moving to the page number 2. What is visual communication? Visual communication is use of visuals like charts, graphs, diagrams to present information. And here one thing is very important, that is about the visual communication. Actually visual communication is about the visuals. Which type of visuals? Like charts, graphs, diagrams, maps, models, photographs, drawings, etc. Remember this thing, these diagrams, these charts, these different visuals, they have to convey a message, they have to transfer information, they have to share some knowledge or some idea or opinion, as the same thing we have defined in the definition of communication. It is essential form of communication in presentation. It has the different types. तो इट इज़ जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए. हमें डिफरेंट विजुअल्स को यूज़ करना पड़ता है प्रेजेंटेशन में. जैसा कि बच्चों आप करते हैं कि स्लाइड्स में आप पिक्चर्स ऐड करते हैं, ग्राफिक्स ऐड करते हैं, डिफरेंट चार्ट्स ऐड करते हैं, जस्ट टू मेक योर कम्युनिकेशन, मेक योर प्रेजेंटेशन, मेक योर टॉपिक वेरी सक्सेसफुल. तो यही बच्चों रोल होता है कि इसका विजुअल कम्युनिकेशन का फॉर प्रेजेंटेशन, कि ये अलोन वी आर नॉट यूजिंग इट एज अ सिंगल एंटिटी, बट इन द मिक्स वे by adding it in our presentation topics we are using different visuals. तो इसकी जो टाइप्स होती हैं, टाइप्स में इसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 मॉडल्स, नंबर 3 ग्राफ्स, नंबर 4 मैप्स एंड द नंबर 5 is photographs, drawings or the diagrams. And remember one thing more, visual communication is a separate study, is a complete subject and a study of different visuals. But here in our subject, that is communication skills, here we shall just discuss visuals, different visuals that are necessary for our presentation process. Now move to the page number 3, and here we shall discuss the first visual, that is object. The use of actual object to demonstrate on during the presentation. Actually objects क्या होते हैं? किसी रियल ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को यूज़ करना एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन करने के लिए इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. आप किसी ऑब्जेक्ट को, जिस चीज़ के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, उसकी डिटेल बतानी है, उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेके जाएं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस व्हेन यू विल स्टैंड. तो आप उनको वन बाय वन उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटीज़, वट एवर यू वांट टू डिस्कस देयर, तो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव वे टू ब्रिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद यू इन प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ऑडियंस को टाई की नाट लगाना सिखाने वाले हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने साथ एक टाई को लेके जाएं एंड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस आप वहाँ खड़े होकर उनको उसकी नाट वगैरह लगाना जब वो सिखा दें. एंड द सेम थिंग इज़ हैपनिंग, सेम थिंग इज़ डन बाय अ मैजिशियन. जब वो मैजिकल ट्रिक्स दिखा रहा होता है तो डिफरेंट मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस, पिजन्स, कॉइन्स, हैंडकरचीफ्स एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें लेके आपके सामने खड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ यू एज ऑडियंस. तो वो आपके सामने उसको, उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके आपको मैजिकल ट्रिक्स दिखा रहा होता है. तो इन दिस वे यू विल गेट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. एंड द सेम थिंग a company representative can do when he or she is in front of audience to present something on the behalf of their company. कि कोई मॉडल है, कोई प्रोडक्ट है, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट को लेके जाते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस.
तो वो उसको वहाँ से दिखा के ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हैं लाइक दैट. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट to be used as visual. And the number 2 we have, that is model, representation of an object that we use when the real object is ineffective or not possible to bring for some reason. मॉडल्स बच्चों हम उस वक्त स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं जब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम रीज़न्स कि हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेके जाएं. तो फिर उस केस में हम अपने साथ मॉडल्स को लेके जा सकते हैं. रिमेंबर दिस थिंग के मॉडल्स, कंसेप्ट ऑफ मॉडल इन विजुअल्स ये बिल्कुल अगेंस्ट हैं, अपोजिट है किसके, ऑब्जेक्ट्स के. आई एम रिपीटिंग, when due to some reason, due to certain reasons, you are not in position physically and even sometimes it is not possible to bring original object with you. In that case you can take the model of that particular object, so you can explain the audience in an effective way. For example, अगर आप skeleton system की बात करने वाले हैं तो it is not possible for you to bring original skeleton of something, someone, some person, some animal and like that. That might be too large, that might be too small and like that. तो अगर आप सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाले हैं तो स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ब्रिंग द सोलर सिस्टम इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस ऑन अ स्टेज. तो उसके लिए भी हमें ज़रूरी है कि हम फिर एक मॉडल लेके चले जाएं लाइक दैट, ताकि हम उसको मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकें. दिस वाज द सेकंड visual aid that we have discussed. Now I am moving to the third, that is graphs. It is very important. Actually mostly it is said that कि जो तस्वीर होती है, जो पिक्चर्स होती हैं, pictures can speak more than the words. The pictures can speak louder than the words. तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कहता है ग्राफ्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़. sometime we need objects, sometime we need models, and sometime we need to compare two different quantities and to show their relation. For example, when you are making different diagrams of economics, different diagrams in the subject of statistics, in mathematics, and even in other subjects as well as, there you are trying to show relation of one value and its relation of one value with the other, means a change in one quantity, increase or decrease in one quantity, how it will affect on the second quantity. तो जब आपने इस तरह की कोई रिलेशन देना होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से, कम होने से दूसरी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, वो कितनी ज़्यादा हुई है, कितनी कम हुई है, उसमें डिफरेंस क्या है. तो ऐसी जब मेजरमेंट्स हमने देनी होती है तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे जो अच्छा जो विजुअल होता है दैट इज़ ग्राफ्स. तो ग्राफ्स की स्टूडेंट्स बहुत सारी टाइप्स हैं. नंबर 1 बार ग्राफ्स, जो बार्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी, जो बिल्कुल एक स्लाइड के एक लाइंस की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ मूव कर रहे होते हैं. लाइंस ग्राफ्स होते हैं जैसे आप क्रिकेट मैच में भी देखते हैं जिसमें स्कोर एक पूरी आपको दिखाई जाती है. बार ग्राफ्स की फॉर्म में भी, लाइन ग्राफ्स की फॉर्म में भी, जब आप टारगेट चेस कर रहे होते हैं स्पेशली. दैन पाई चार्ट्स, वो गोल सर्कल की फॉर्म में होते हैं. एंड द स्कैटर प्लॉट्स, जिसमें डॉट्स लगे होते हैं. दैन एट द एंड वी शैल मेक द ट्रेंड लाइन इन दैट डॉट्स. तो ये ग्राफ्स का कंसेप्ट है, ये भी हमारे विजुअल्स में है, इनको आपने डिस्कस करना है मज़ीद. नंबर 4 मैप्स. Maps shows geographic areas that are in the interest to speech. While speaking of the differences between areas or the location of something, actually maps की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. Sometime हमें geographical location का डिफरेंस बताना होता है between two different locations and even sometime more than two. Sometime हमें रूट बताना होता है. Sometime हमें एरिया का डिफरेंस बताना होता है, जियोग्राफिक एरिया शो करना होता है कि देखें जी दिस सेक्शन इट हैज़ दिस मच एरिया एंड दिस हैज़ दिस मच एरिया लाइक दैट. तो उसके लिए भी हमें मैप्स यूज़ करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप 2 हाउसिंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो हाउ यू विल शो देयर डिफरेंस, डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ मैप्स. आप मैप लेके उस पर बताएंगे कि जनाब ये एरिया इसकी हाउसिंग स्कीम का, ये दूसरी हाउसिंग स्कीम का, लाइक दैट. तो इन दिस वे आप कंपेयर भी कर सकते हैं, उनका रूट्स भी बता सकते हैं, उनकी जियोग्राफिकल डिफरेंसेस भी बता सकते हैं कि जनाब दिस इज़ इन द मेन कमर्शियल एरिया ऑफ द सिटी, ये देखें शहर के अर्बन एरिया में आ रहा है, रूरल एरिया में आ रहा है, लाइक दैट. तो आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल यही है जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गूगल मैप. तो गूगल मैप भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, एक अच्छी एग्जांपल है विजुअल की इन द मैप्स. नंबर 5 फोटोग्राफ्स एंड द ड्राइंग्स. फोटोग्राफ्स or the drawings are the good tools to make or emphasize a point or explain a topic. फोटोग्राफ्स sometime होता क्या है, sometime हमें किसी पिक्चर से, किसी ग्राफ से, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है, किसी चीज़ में से भी, कोई ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट है, मॉडल है, कुछ भी है. तो इन दैट केस फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस मॉडल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बजाय हमें एक तस्वीर ले लेनी चाहिए, एक फ़ोटो ले लेनी चाहिए, एक डायग्राम ले लें, एक ड्राइंग बना लें.
और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके उसकी मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है वी कैन प्रोवाइड, और उसको हम एम्फेसाइज भी कर सकते हैं ऑन एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इन योर प्रीवियस क्लासेस, तो वहाँ पे जब आप किसी सेल की डिस्कशन करते थे तो आपको सेल का एक स्केल, एक पिक्चर बनी होती थी, उसके ऊपर आप पॉइंट करके बता देते थे कि दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन एंड लाइक दैट, सारे पार्ट्स को आप लेबल भी करते थे। तो बिल्कुल ऐसा भी होता है। इसी तरह आप जो है क्या नाम है को पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो आप किसी जियोग्राफिकल लोकेशन का पॉइंट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर ही, किसी फ़ोटो के ऊपर, लाइक दैट। तो फॉर एग्जांपल कहता है व्हेन एक्सप्लेनिंग द सिटी हाउसिंग स्कीम इन अ सिटी इट वुड बी बेनिफिशियल टू शो इट्स पिक्चर। अगर आप सिटी हाउसिंग स्कीम को अपने शहर में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बेटर क्या होगा कि आप उसकी एक पिक्चर ले लें, ड्राइंग ले लें, फ़ोटोग्राफ, बड़ी सी फ़ोटोग्राफ चार्ट ले लें, बड़ा सा एक मॉडल ले लें उसका, जो भी लाइक दैट। बेहतर का आप ड्राइंग डिस्कस है, उसकी ड्राइंग बना लें, उसको डिस्कस कर लें, वहाँ से आप चीज़ों को बता सकते हैं दूसरों को, लाइक दैट। दिस वाज द लास्ट visual aid that we have discussed. If you have any question, so anytime you can raise your question, you can ask. Thank you.